इसके हमने अभी एक बेसिक चीज जो फंडामेंटली देखी है शुरू से अब तक, इसके हमने चार्ज को डिस्क्रीट माना है. what we have considered so far is charge as discrete. डिस्क्रीट से मतलब अलग थलग, इधर उधर इधर उधर. We haven't taken anything as like a charge which is uniform या continuous charge. Not uniform but continuous. Continuous charge नहीं लिया है अभी तक हमने. तो continuous but basically जैसे हमने gravitation के केस में भी if I am trying to connect basically gravitation में शुरू में हमने point mass लिया था सब चीज को. We did not consider any dimension of the object. We only took it as point mass. सारा mass उसके center of mass पे located है और उस point से किसी दूसरे mass की दूरी उसके basis पे हम gravitation law लगाते थे and we used to calculate and do all the math. यही शुरुआत हमने electrostatic में भी करी. But that's a very that's a oversimplification. आपको charges ऐसे ही point charges नहीं मिलेंगे. You'll find charges which are extended. ऐसा हो सकता है it's a line of charge. It could be a ball of charge. It could be a surface of charge in real and practical life. तो उस situation में क्या होता है? What does happen? उस केस में basically depending on the kind of object, we define what we call as charge density. There is a term called charge density. Basically what we are saying is, जैसे density, the word itself kind of rings a bell that density means something which we know that mass per unit volume. यानी जो भी matter है per unit something, we kind of defining it at a very unit level. What उसका एक ratio, एक rate निकाल के. तो charge density also means charge per unit something, some value, quantity. और ये quantity, this actually depends on, and this is in case of continuous charge basically. And this is in case of continuous charge, basically something like, let's say if you have a line or a wire which is charged, यानी इसका पूरा का पूरा चार्ज जितना भी है is distributed along this line. It could be a wire. So when I'm describing something like this, I mean to say इसकी length, इसकी पूरी length पे charge without any special preference, it is uniformly distributed. कोई वजह नहीं है कि यहाँ पे चार्ज और यहाँ पे चार्ज में कोई अंतर हो या एंड पे अलग हो और बीच में कुछ और हो. सो आई एम सेइंग इट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. तो उस केस में जो चार्ज डेंसिटी इज बेसिकली नथिंग बट द टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय द टोटल लेंथ. सो एंड दैट वैल्यू इज डिफाइंड एज लैम्डा, जस्ट अ सिंबल, एंड वी कॉल इट एज लीनियर चार्ज डेंसिटी. लीनियर for obvious reasons, charge obviously density, and this value is Q over L. No points for guessing. L is the length, Q is the charge, total charge. तो अब आपने क्या कर दिया, चार्ज को पर यूनिट, यानी कितनी भी बड़ी वायर हो, आपको अगर इसमें कोई एक छोटा सा एलिमेंट सपोज ले लिया जाए, बहुत छोटा सा कट लगा दे और उसकी लेंथ मान लो DL, या इंटीग्रल नहीं यूज करें तो डेल्टा L, अ वेरी स्मॉल लेंथ. तो इस स्मॉल लेंथ के अंदर अगर हमारा चार्ज
मे बी डी क्यू है और फिर से डेल्टा क्यू चार्ज है, तो ये जो डेल्टा क्यू की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? हाउ मच वुड इट बी? आई थिंक शाइनिंग ऑन इट, सो लेट मी रब इट ऑफ। अभी ठीक दिख रहा होगा। ये डेल्टा क्यू कितना हो जाएगा? ये चार्ज, इसमें जो चार्ज होगा छोटे से एलिमेंट, उसकी वैल्यू क्या होगी? कंसिडरिंग द टोटल चार्ज ऑन द एंटायर वायर इज क्यू। Q by L multiplied by delta L. Q by L multiplied by delta L, which is what you can say it is lambda delta L, यानी density into the length, जो quantity है that is giving you the value। आप श्रेय एग्री कर रहे हो इस बात से? Yes sir। तो हम इस चीज को कैलकुलेशंस में यूज करते हैं एक्चुअली। We oftentimes have to assume an elemental charge, इसको हम बोल सकते हैं elemental charge anywhere on a wire। तो अगर आपको वायर के ऊपर elemental charge देखना है तो you'll have to specify कि इसकी quantity जिस पे charge located is the length, तो उस length का एक छोटा सा element लेंगे और उस charge को इतनी सी length में कितना charge होगा that we will try and figure out। ऐसे ही काम आप सरफेस पे भी कर सकते हो। You know, there could be a surface, like let's say एक प्लेट हो सकती है आपके लिए तो इस पूरे प्लेट पे जिसका कुछ डायमेंशन हो सकता है, मे बी दैट इज द टोटल एरिया इज एस। हम तो एरिया मान सकते हैं उसको क्योंकि इससे टू डायमेंशन थी, तो एरिया इज फिजिकल क्वांटिटी। तो इसमें अगर Q is the total charge which is distributed evenly across this plate, तो इस केस में जो charge density is defined as sigma and we call it as surface charge density। So that is actually Q over S। जो S, अब यहाँ पे ये तो एरिया कंप्यूटेड है, कोई हो सकता है किसी केस में आपको रेक्टेंगुलर प्लेट बोल दिया जाए, किसी केस में सर्कुलर प्लेट बोल दिया जाए, और वट एवर बी द काइंड ऑफ, जैसे एक आपका एलिमेंट हो सकता है ऑन ए ये सिलेंड्रिकल है, और सिलेंड्रिकल में भी आपको मान लो यहाँ इस साइड पे कोई एक एलिमेंट कंसिडर करना है, तो आप उस केस में ds कुछ भी मानिए और you know that whole thing is a circle, तो सर्कल का जो भी रेडियस के हिसाब से आप एरिया निकाल सकते हो। So again that is called a surface charge density। और अगर इसी का, so this is a 1D version, this is a 2D version, and the third is जैसे अगर आपका कोई एक स्फीयर हो, और इस पूरे स्फीयर पे चार्ज, सेम चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और ये इसका वॉल्यूम इज, और जरूरी नहीं कि ये कोई हॉलो स्फीयर है इसकी बात करें, इट कुड बी ए सॉलिड स्फीयर, इसमें पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है एंड दैट चार्ज इज Q और इसका वॉल्यूम इज मे बी V। तो व्हाट वी कॉल इट एज वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी and that is delta, I believe, same symbol for that, Q over V। So this is volumetric charge density। तो अब इनका again I'm reiterating the fact that this is for continuous charge, जहाँ पे भी आपको उस केस में एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर करना पड़े, मान लो इस वॉल्यूम के अंदर एक 3D एलिमेंट dV delta V, it could be a small element over here, तो delta V के अंदर जो चार्ज होगा that would be delta Q। Again by the same argument you would say delta Q would be nothing but Q over V, जितना भी वॉल्यूम है, into delta V। ये इसकी
चार्ज इस एलिमेंट के अंदर निकल आएगा। ठीक है, तो दिस इज मोर फ्रॉम ए अंडरस्टैंडिंग पर्सपेक्टिव कि आपको एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के केस में ऐसी चीजें करनी पड़ सकती हैं। ठीक है, now we come to an important thing which is what we call as the Gauss's law. Gauss law के लिए तो इसका कोड भी क्लियर कर देते हैं। गॉस लॉ के बारे में क्या अंडरस्टैंडिंग बनी है आप लोगों की अभी तक, अगर आपने कुछ सेल्फ स्टडी करी है तो, और क्या है वो? मुझे तो अभी इतना याद नहीं आ रहा। ओके, गॉस एक बेसिकली साइंटिस्ट ही थे। इन्होंने भी कुछ डिफरेंट वेज यूज करके ही वॉज एबल टू डिफाइन, जैसे हमने कूलम्स लॉ को यूज करते हुए आगे एक्सटेंड करते हुए वी हैव बीन एबल टू अराइव एट द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। उसका हमने रिजल्ट निकाले भी हैं। इन जनरल वी सेड दैट किसी भी चार्ज की वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है at any given point. Gauss ने use of symmetry and geometry, he was able to arrive at the same conclusions in a much similar way, and he relied on the practical use of what we call as flux. Flux का इन्होंने use किया, और flux जिसकी हमने definition देखी थी कि it is actually nothing but delta phi is equal to E dot ds vectorially। तो इन्होंने क्या किया, बेसिकली इस चीज को यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को बड़े आसान तरीके से डिराइव करा फॉर क्वाइट अ फ्यू सिनेरियोज, और even that is practically possible। तो मतलब इसमें क्या है, बेसिकली जो फ्लक्स है किसी भी सरफेस के किसी भी बॉडी, उसको हम कंप्यूट करते हैं, एंड व्हाट ही सेज कि जितना भी नेट फ्लक्स किसी भी बाउंडेड सरफेस के थ्रू जाता है, यानी अगर आप एक सरफेस कोई भी सरफेस ले लेते हैं जैसे ये, ठीक है, इस सरफेस की वजह से अगर आपको इलेक्ट्रिक दिस इज क्लोज, यू कैन से क्लोज सिमेट्रिकल सरफेस कुछ भी आपने बनाया है, अब आपको इसके अंदर कोई भी सर्टेन अमाउंट ऑफ चार्ज है या नहीं है, उसकी वजह से अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी गिवन पॉइंट निकालना है, तो व्हाट यू कैन डू इज, आप इस पॉइंट की वजह से नॉट हियर, यू कैन टेक अ पॉइंट ऑन एक बेसिकली कहीं भी, एंड व्हाट ही सेज इज कि आप एक एनक्लोज्ड सरफेस बनाइए विच इंक्लूड्स दैट पॉइंट जहां पे आपको कंप्यूट करना है, एंड व्हाट ही डिफाइंड इज कि दिस टोटल फ्लक्स जो उस पॉइंट के थ्रू जा रहा होगा, दैट वैल्यू E dot ds, इसका एक बेसिकली व्हाट ही सेज इज द टोटल फ्लक्स इंस्टेड ऑफ बीइंग डेल्टा, इट इज एक्चुअली गोइंग टू बी द total flux is nothing but a closed integral। एक closed integral वैसे NCERT में इस तरीके से नहीं बोलते, but it's more like a closed integral, यानी उस पूरे enclosed surface की वजह से जितना भी आप कंप्यूट करेंगे E dot ds value, this value is the total flux is nothing but equal to the
amount of charge which is inside this surface, यानी इस surface के अंदर कोई एक particular amount of charge हो सकता है Q in over epsilon naught. So what he said is basically आपको क्या करना है कि कोई जहां भी आपको फ्लक्स निकालना है उस फ्लक्स को इंक्लूड करते हुए एक सरफेस इमेजिन करिए. इट्स नॉट ए हार्ड सरफेस, इट इज एन इमेजिनरी सरफेस. आप उस इमेजिनरी सरफेस को ऐसे इंक्लूड कीजिए कि इट एक्ट्स लाइक ए गॉसियन सरफेस. गॉसियन सरफेस मीन्स दैट इट फॉलोज सर्टेन रूल्स कि आप उसमें कोई सिमेट्री देख सकें, और सिमेट्री देखेंगे तो उसके बाद व्हाट यू नीड टू डू इज कि उसके जितने भी सरफेस है एंटायर बाउंडेड सरफेस, उस सरफेस के थ्रू आप क्लोज्ड इंटीग्रल बेसिकली सेइंग कि फॉर ईच एंड एवरीथिंग जितने भी सरफेसेस हैं उसके थ्रू आप टोटल फ्लक्स कंप्यूट करिए, और उस फ्लक्स को आप कंप्यूट करें. दैट शुड बी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज विच इज इनसाइड दिस सरफेस bounded by this surface over epsilon naught, and that is the entire crux of what Gauss's law says, right? So total flux through a Gaussian surface is equal to the total charge enclosed within that surface over permittivity of free space. ये तो वैल्यू हमको पता है. तो ये आपका गॉसेस लॉ का डेफिनेशन है. अब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, यानी हाउ टू यूज द गॉसेस लॉ टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. खासा इसका यूज वही है जैसे अभी हम बात कर रहे थे जैसे कंटिन्यूस चार्ज में. अब कंटिन्यूस चार्ज में आप खुद सोच के देखना, आप वैसे भी निकाल सकते हो, और यानी कूलम्स लॉ और उससे डिराइव इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डेफिनेशन है फोर्स इज इक्वल टू E डॉट dl, वो यूज करके भी आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हैं. बट फॉर कंटिन्यूस सरफेसेस Gauss law also is very useful method of deriving at the electric field intensity, even for a point charge also. It's not a problem. तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, जैसे एक पॉइंट चार्ज के पॉइंट केस से देखें. जैसे एक पॉइंट चार्ज है, जैसे ये Q है, और आपको यहाँ पे P पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है ये निकालनी है. हाउ डू वी यूज द Gauss's law to find out what is the value of E, which is at a distance maybe R, right? तो हम क्या करते हैं, हम एक सरफेस मानते हैं which includes this point जहां पे आपको कंप्यूट करना है. वो पॉइंट इस तरीके से देखा जाता है कि इट इज सिमेट्रिकल, यानी आपने इस पॉइंट को E को यहां माना है, तो वो E पॉइंट R दूरी पे कहीं भी हो सकता है. यानी एक ये P पॉइंट यहाँ है तो एक Q भी हो सकता था, बिकॉज इट इज ऑल्सो. हमने क्या किया, एक स्फीयर इमेजिन किया. बेसिकली इट्स नॉट ए सर्कल, इट्स ए स्फीयर, इट्स इन 3D. तो आपने एक स्फीयर इमेजिन किया अराउंड दिस चार्ट एट ए डिस्टेंस R. तो देयर कैन बी मिलियंस ऑफ पॉइंट्स which are equivalent. और यहाँ पे आपकी equivalent relation यूज हो गई मैथ्स में, जो है equivalent which is reflexive, which is symmetric, which is transitive. ये तीनों ही चीजें फॉलो करती हैं, यानी this point and this point are equivalent. यहाँ भी ऐसे बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं जो which are at the same distance. तो ये एक गॉसियन सरफेस है. तो इस गॉसियन सरफेस को मतलब ये क्राइटेरिया यूज इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमने जो पर्टिकुलर पॉइंट लिया है दैट इज इक्विवेलेंट, यानी एक सरफेस पे सारे पॉइंट बिल्कुल ऐसे ही इक्विवेलेंट होंगे उस पॉइंट के जिसको हम मान रहे हैं, राइट? तो दिस
अब हम इसके लिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे, तो व्हाट वी विल डू इज we'll try and find out how much is the flux which will pass through this sphere from this charge. अब आपको ये तो पता है कि electric field lines of course are radial, चारों तरफ है ना? तो वो रेडियल जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं, ये यानी फ्लक्स विल पास थ्रू एवरी बिट ऑफ पॉइंट. तो अब इस केस में क्या करेंगे, व्हाट विल डू इज विल ट्राई एंड सी, या तो आप एक छोटा सा एलिमेंट आप यहाँ मान सकते हैं. आपने ये पॉइंट मान लिया डेल्टा एस, राइट, इसको डीएस भी बोल सकते हैं. क्लोज इंटीग्रल यानी इस क्लोज सरफेस के अराउंड पूरा इंटीग्रेट करना है, नोइंग कि मैं एक छोटे से एलिमेंट डेल्टा एस पे मैं अपना फोकस रखता हूँ. तो बेसिकली ई. अब एक चीज और इमेजिन करो कि E on any point on the surface is going to be constant. यानी ये E इस ds, ये ds कहीं भी हो इस सरफेस पे ये बराबर होगी, बिकॉज वो बराबर दूरी पे है और सिमेट्रिकली फॉलो हो रहा है. तो व्हाट विल हैपन इज इफ यू कंप्यूट दिस क्लोज फाई निकालोगे, यहाँ पे करते हैं, फाई निकालोगे, इट वुड बी क्लोज इंटीग्रल E dot ds, basically small element, or since this is E is constant, so I can take this out, and also the fact that E would be radial, yani E is outward and normal to this area, so E dot ds would be nothing but E ds, yani इनके इन दोनों के बीच में एंगल इज 0. इसका डेल्टा एस का जो वेक्टर होगा दैट इज आल्सो इन द पॉइंट, यू नो, इट विल आल्सो बी पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन. एरिया वेक्टर भी सेम डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम डायरेक्शन, यानी इन दोनों के बीच में एंगल इज 0, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट इज जस्ट अ सिंपल प्रोडक्ट. सो ई डी एस एंड दिस वुड बी ए क्लोज इंटीग्रल. क्यों? क्योंकि हमको पूरे एरिया पे इसको कंप्यूट करना है. ये स्क्वायर जैसा लग नहीं रहा, बट यू कैन इमेजिन. अब दिस वैल्यू ऑफ स्फीयर, सॉरी दिस एरिया, व्हेन यू कंप्यूट इट ओवर द एंटायर सरफेस, हाउ मच इज द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर? Four pi r square. 4 times pi times r square. अच्छा एरिया है, हाँ, 4 pi r square. राइट. तो ये 4 pi r square. अब गॉस ने बोला कि this is the total value of flux, and this is equivalent to the charge enclosed within this Gaussian surface, which is actually हमने Q माना है over epsilon naught. तो इससे ये जो E की वैल्यू है that comes out to be 1 over 4 pi epsilon naught Q over r square, which is the same as what we obtained earlier. तो क्राइटेरिया क्या रहा इसमें, मतलब सिर्फ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट एक है कि हमने एक गॉसियन सरफेस माना है, और वो सिमेट्री, उसके रूल्स क्या है, इट नीड्स टू बी अ सरफेस व्हिच कैन फॉलो सिमेट्री, जिसमें हर पॉइंट इक्विवेलेंट है, और एंड इट इज अ क्लोज सरफेस, एंड दिस हेल्प्स यू टू कंप्यूट. अब ये चार्ज इसमें यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता. पर रेडियस चेंज नहीं हो जाएगा डिपेंडिंग कि कितना. sorry I correct myself, it would matter, but ultimately what we are saying is हाँ equivalent point नहीं रह जाएंगे ना, फिर equivalent point नहीं रह, it would still it needs to be symmetrical. तो ये इसकी मतलब ब्यूटी है कि you are able to easily compute this value. अब इसी चीज को गॉस ने एक लाइन चार्ज के लिए कंप्यूट किया, यानी एक सरफेस विच इज लीनियर चार्ज सरफेस, और इसके ऊपर ऐसा मान लीजिए कि एक पॉजिटिव चार्ज है पूरे सरफेस पर बराबर.
ये अंदर है, नॉट आउटसाइड है ना, इट्स ए लाइन चार्ज। तो लाइन चार्ज है तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय एल, अगर ये क्यू चार्ज है डिवाइडेड बाय एल। अब इस लाइन चार्ज के अराउंड एक पर्टिकुलर पॉइंट पे सपोज आपको P पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो what kind of a Gaussian surface would you include in this case and why? क्योंकि हमको निकालना तो अल्टीमेटली इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो कैसे निकालेंगे? Maybe we will take a cylindrical area like around the wire. We'll take a cylindrical area around the wire. तो उससे क्या होगा? So we can check all the flux that is coming out of the wire, or because it is in circular shape, all the points should be equivalent because radius भी same रहेगा. पहली चीज तो इसमें ये है कि ये पॉइंट जो है आपका, ये पॉइंट इज इक्विवेलेंट इन द सेंस कि आपका ये पॉइंट कहीं भी हो सकता था, इट कुड हैव बीन अ पॉइंट हो। तो इस पे फर्स्ट ऑफ ऑल एक पी पे अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, किस डायरेक्शन में पॉइंट कर रही होगी? Perpendicular to the wire, I guess. परपेंडिकुलर टू द वायर होगी, यानी इस डायरेक्शन में आउटवर्ड। होगा क्या कि अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो कोई भी एलिमेंट होगा, कोई भी एक चार्ज का एलिमेंट होगा, वो अपने से इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन में भेजेगा। इट वुड बी अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन, एक तरीके से देखो रेडियल डायरेक्शन में एमिनेट करेगा। तो व्हाट विल हैपन इज, अलग अलग आप एलिमेंट्स लेंगे तो व्हाट विल हैपन इज इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट बनेंगे। एक कंपोनेंट होगा जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा और एक कंपोनेंट होगा जो आउटवर्ड कंपोनेंट होगा, व्हिच विल बी काइंड ऑफ इस कर्व्ड सरफेस के। सर बट वर्टिकल कंपोनेंट कट नहीं हो जाएगा क्योंकि लाइक ऊपर से भी वर्टिकल कंपोनेंट आएगा तो। एग्जैक्टली, तो इसका मतलब है कि ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये सारे दे वुड बी इनसिग्निफिकेंट। द ओनली थिंग वेयर व्हिच वुड बी सिग्निफिकेंट वुड बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वुड बी आउटवर्ड परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ वायर, राइट। और ये वायर इज एक्चुअली यू कैन से दिस इज इन्फिनिटेसिमल, इनफाइनाइटली लार्ज। तो इसका मतलब है आप इसमें एक पर्टिकुलर पार्ट कहीं पे भी ले लें, उस पॉइंट से एक पर्टिकुलर आर दूरी पे, यानी आपने अगर कोई आर दूरी पे एक पॉइंट इमेजिन किया तो उस पॉइंट पे इट वुड हैव अ डायरेक्शन व्हिच इज रेडियली आउटवर्ड, मतलब इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा बेसिकली। अब हमारा काम क्या हो गया, इस पॉइंट मतलब हमने एक गॉसियन सरफेस इमेजिन किया। अब ये कर्व्ड सरफेस की तो बात समझ में आ रही है। अब आप सोचोगे ये एलिमेंट क्यों है, ये मतलब ऊपर जो सरफेस है उसका क्या रेलेवेंस है? Could you repeat that? या बिल्कुल। तो इसका जो गॉसियन सरफेस है इट इज काइंड ऑफ सिलिंड्रिकल ये, और आप ये मान के चलो कि बेसिकली द रीजन वी इमेजिन दिस एज अ सिलेंडर इज बिकॉज के फर्स्ट ऑफ ऑल एनी पॉइंट ऑन दिस कर्व सिलेंडर वुड बी एन इक्विवेलेंट पॉइंट, क्योंकि वो इस वायर से बराबर दूरी पर होगा फर्स्ट ऑफ ऑल।
Yeah. Yes, sir. So that is one basic criteria why we are using this kind of a Gaussian surface in this case. Again, we will use the same fundamental principle. Total flux phi would be a closed integral E dot ds. हमारा ये जो सरफेस है, एक छोटा सा एलिमेंट मान लिया हमने. अगेन इस पे क्या है, E और इसका एरिया, क्योंकि ये एक कर्व सरफेस पे हमने लिया है, तो इसका भी एरिया वेक्टर इसी डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा होगा, एक यूनिट एलिमेंट. एंड दैट इटसेल्फ, यानी अगेन इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट वुड बी E ds. हमने इस पे डॉट हटा दिया, वेक्टर भी हट गया, इट्स जस्ट a scalar product. And this value would be जो पूरा entire curved surface area. What is the curved surface area of a cylinder? यहाँ पे काम आ रहा है 10th का. अब आप सोच रहे हो कि वो कर क्या रहे थे हम लोग 10th में. इसका रिम की लेंथ मल्टीप्लाइड बाय द लेंथ ऑफ द सिलेंडर. Yes, sir. तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक पर्टिकुलरली सेक्शन ऑफ वायर कंसीडर कर रहे हैं कि इट इज 2 pi r into L, दैट इज योर एरिया ऑफ द कर्व सरफेस, एंड दैट शुड बी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज विच इज एनक्लोज्ड इनसाइड दिस सिलेंडर. तो अब हमें निकालना है, ये लेंथ अगर L है तो इस लेंथ ऑफ L की डेंसिटी इज दिस, तो लैम्डा इनटू L वुड बी योर चार्ज. Yes, sir. Yes, sir. ओवर एप्सिलॉन नॉट. तो इससे जो निकल के आती है वो वैल्यू आती है E वुड बी इक्वल टू E इंटू 2 pi, E कम्स आउट टू बी equals to lambda L over 2 pi r L epsilon naught, और ये lambda गए, and this gives you lambda over 2 pi epsilon naught r. यानी वो लेंथ ऑफ, क्योंकि ये इनफाइनाइट वायर है, तो इस इनफाइनाइट की वायर की लेंथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है. इट इज ओनली डिपेंडिंग ऑन हाउ फार यू वांट टू फाइंड इट आउट, यू नो, उस वायर से कितना दूरी पे. So this is the value of the electric field, magnitude of the electric field, and it would be radially outward. तो यानी इसके चारों ओर perpendicular, मतलब कहीं भी पॉइंट पे ऐसे ही इमिनेट कर रही होगी. तो उस दिन हम बात कर रहे थे ना कि पैरेलल लाइंस ऑफ फोर्सेस कैसे आ रही होंगी. तो देखो ये एक तरीका हो सकता है पैरेलल लाइंस ऑफ फोर्सेस को जनरेट करने का. Yes, sir. तो मेथड समझ में आया कि व्हाट वी आर डूइंग. ये क्लोज इंटीग्रल वाला प्रोसेस भी समझ में आ रहा है कि व्हाट वी आर डूइंग हियर. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब इसमें एक तो और है, लाइक आई मीन सिर्फ दिस इज लाइन चार्ज. एक है सरफेस के लिए ये पॉइंट था, ये लाइन था, एक सरफेस, यानी यू कैन इमेजिन अ लार्ज प्लेट. थोड़ा सा इसको टिल्टेड बनाता हूँ सो दैट ऐसे. Even though it looks like it is small, but imagine this is a very large plate. इसका surface area ये है और इसकी surface charge density is sigma. ठीक है, सारे पे charge है, तो you can imagine positive charge पूरा है. और आपको इस प्लेट से एक पॉइंट P, which is maybe a distance, you know, R away, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है. तो इस केस में कैसा गॉसियन सरफेस इमेजिन करेंगे. ये पॉइंट, क्योंकि ये प्लेट इतनी लार्ज है कि ये पॉइंट
यहाँ ना होके थोड़ा ऊपर भी हो सकता था, नीचे भी हो सकता है, as long as it is the same distance away. Could you repeat? I couldn't hear you. So what I Yes, said sir. is this point can be a little up and a little down, because what we are imagining or what we have as a consideration is that this place is infinitely large. Yes, sir. Yes, sir. और दूसरी बात ये कि ये पॉइंट लेफ्ट साइड भी हो सकता है, it could be on the right side, it could be on the left side also, because symmetrically अगर आप देखें तो r distance अवे तो एक पॉइंट इधर भी होगा ना. So the kind of thing which we imagine is इसके लिए basically हमारा जो Gaussian surface हो जाता है वो इस तरीके से बन जाता है. We kind of imagine a cylinder. और इस पॉइंट पे we consider कि एक छोटा सा एलिमेंट है ds, और आप देखें तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में होगी, राइट. और इमेजिन करिए कि एक तो ये सरफेस है और एक ये सरफेस है, इस पे भी इस डायरेक्शन में होगी, क्योंकि आउटवर्ड पॉइंट कर रहा है. इसका एरिया एलिमेंट इस डायरेक्शन में होगा इस साइड, और इसका एरिया एलिमेंट इस डायरेक्शन में होगा. So what we have is basically we have two identical points around this plate where you would have the same electric field intensity, but then we also have this curved part of it, like ये हमने Gaussian surface बनाया था, इसका curved part भी है. What you would notice is क्योंकि ये electric field intensity is symmetrically अगर देखो तो इस प्लेट के अराउंड it would be going in this direction, और ये जो curved portion है, इस curved portion पे if you imagine some kind of a surface, किसी भी पॉइंट पे एक सरफेस इमेजिन करोगे तो what you would see is that direction of the area vector for this particular element would be in a direction which is perpendicular to this electric field. यानी अगर ये पॉइंट इधर इमेजिन कर रहे हो या यहाँ भी इमेजिन कर रहे हो, that point would still be perpendicular to this electric field. बात कुछ आई नहीं. Think yes, sir. भाई एक बात समझ के देखो, ये हमने गॉसियन सरफेस इमेजिन करा है, ठीक है जी. इस पॉइंट पे एरिया वेक्टर वुड बी इन दिस डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में. तो E डॉट ds जो इसका डॉट प्रोडक्ट होगा, दैट वुड, इन दोनों के बीच में एंगल 0 है तो इट वुड हैव सम वैल्यू. Yes, sir. सेम स्टोरी इस साइड, इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर भी इस सर्कुलर सरफेस पे इसी डायरेक्शन में. Yes, sir. ठीक है ना. तो बेसिकली यहाँ भी आपकी E डॉट ds यानी फ्लक्स इसके थ्रू भी निकल रहा होगा. अब आप ये पॉइंट जो इमेजिन करना है वो इसके ऊपर इमेजिन करना है, ये कर्व के ऊपर. इस कर्व पे देखो, इसका एरिया वेक्टर इस तरफ होगा, यहाँ पे देखोगे इधर होगा, यहाँ पे देखोगे इधर होगा, यहाँ पे देखोगे नीचे होगा, एक डायरेक्शन में. पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसी डायरेक्शन में है ना, दोनों साइड. Yes, sir. तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 degrees. किसी भी पॉइंट पे लोगे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल इज 90 डिग्री. Yes, sir.
तो यानी अगर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल इज 90, दैट मीन्स जो कर्व सरफेस है उसके थ्रू कोई भी फ्लक्स पास नहीं करेगा. All the flux will be leaving these two surfaces only. Okay. Repeat the last part. What I'm trying to say is the entire flux will only cross these two surfaces. By the way, ये मैंने circular बना दिया, but इसकी circular की जरूरत नहीं थी. You could have made it more like a cube की तरीके से भी बना सकते थे. There was no need for me to make it look like a cylinder. ठीक है? तो basically the flux. So what I can say is there is one surface which is this one S1. अगर मैं इसको S2 बोलूं और एक curved surface को S3. तीन तरीके के surfaces हैं. S1 and S2 are identical. S3 is a little different क्योंकि ये curved surface है. So what I can say is कि flux passing through the surface 1 is E. You can say इसको मैं पूरा फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए मैं इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ. एक मैं इसका फ्लक्स निकाल सकता हूँ, इसका फ्लक्स निकाल सकता हूँ, इस थर्ड सरफेस का निकाल सकता हूँ, तीनों को ऐड कर सकता हूँ. दैट मीन्स आई कैन डू द नेट फ्लक्स इज नथिंग बट phi1 प्लस phi2. इसमें इंटीग्रल नहीं लगेगा क्योंकि इंटीग्रल इज मोर फॉर ए सिमेट्रिकल सरफेस. यहाँ पे सिमेट्री नहीं है. phi3. अब इसमें से phi1 और phi2 which is this and this is actually going to be of equal magnitude and that value would be E ds. यानी अगर इसका सरफेस ds नहीं, सरफेस अगर इसका S1 है तो S1 इसका एरिया ले सकता हूँ और दूसरे का भी E S2, राइट. और इस केस में phi3 would be 0 because the angle between E and area vector would be 90 degrees and that gives us the value of flux 3 passing through the curved surface as 0. And since we know S1 is actually equal to S2 which is going to be equal to the surface area. ये सरफेस एरिया आप इमेजिन कर सकते हो कि जो जितने भी सरफेस के थ्रू आप कंप्यूट करना चाह रहे हो, यानी अगर इसके अंदर यहाँ पे ऐसा ही सिमेट्रिकल सरफेस मान लेते हैं तो व्हाट यू विल फाइंड इज कि इतनी सरफेस डेंसिटी एरिया, दिस इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी. तो बेसिकली क्या हुआ, E 2 times E into S, that would be the net flux which would be passing through the entire Gaussian surface, and this should be equal to the amount of charge inside this Gaussian surface which would be concentrated in this particular area itself. ये जो enclosed area है यहाँ पे, आप समझ पा रहे हैं? Yes, sir. Over epsilon naught. तो अब मैं इस Q in को बोल सकता हूँ, it would be sigma into S, density into area over epsilon naught, and this gives me the value. ये S और ये S बराबर होंगे क्योंकि वही Gaussian surface है. तो what I get is E is equals to sigma over 2 epsilon naught. ये वैल्यू आपकी आ गई. तो आपने क्या है इसमें देखा एक चीज कि ये इसके अराउंड इसके दूरी पर भी डिपेंड नहीं कर रहा है कि कितना दूर है वो पॉइंट. It is a large plate. इसके अराउंड the intensity of electric field would be more or less constant आसपास के एरिया में. It would not matter कि आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे देख रहे हो, as long as the point is relatively closer, बहुत ज़्यादा दूर नहीं होगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वुड बी कांस्टेंट, which would be given by sigma, which is the surface charge density, divided by 2 times the permittivity of free space. As an exercise, I leave it एक चीज इसमें कि अगर एक स्फेरिकल सरफेस है
एक स्फीयर है, यूनिफॉर्म स्फीयर, सॉलिड स्फीयर मान लीजिए, दैट हैज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ चार्ज q, इससे एक पॉइंट p which is, अगर इसका रेडियस इज लेट्स से r, कैपिटल R, तो इससे एक पॉइंट which is स्मॉल r अवे, वहां पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो आप निकालेंगे। दूसरा, अगर एक पॉइंट P के बाद एक Q इनसाइड है which is let's say at a distance maybe R1 इनसाइड, उस पॉइंट Q पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी यूजिंग गॉसेस लॉ, ये आप करके लेके आएंगे। बाकी दिस कंप्लीट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। You are free to try all questions related to this part from your book, from exemplar, from wherever. I will try and post some specific questions. मैंने आज ढूंढे हैं कुछ चीजें, but I'll see if I can. But in the meantime, I think you have enough work on from where you can find questions related to that. I hope the concept made sense. By the way, I do a correction, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे भी रेडियली आउटवर्ड है। द सेम लॉजिक जो हमने यहाँ लगाया कि ये कर्व सरफेस से फ्लक्स जीरो होगा, वो चीज इधर भी अप्लाई करेगी। यहाँ पे भी ये एरिया वेक्टर और E का डायरेक्शन परपेंडिकुलर होगा, सेम वे एरिया वेक्टर और E का डायरेक्शन यहाँ भी परपेंडिकुलर होगा। तो फ्लक्स ऑन दीज सर्कुलर सरफेसेस थ्रू द सर्कुलर सरफेसेस वुड बी जीरो। सारा का सारा सरफेस इस कर्व्ड सरफेस ऑफ द सिलेंडर के थ्रू ही पास करेगा। दैट इज एन ओमिशन, आई एम करेक्टिंग माई सेल्फ। ठीक है जी? Okay, sir. Did it make sense? Kind of. It's a bit hard to digest, so थोड़ा टाइम तो लगेगा, but practice कर हो जाएगा। एक बार देखना, लेक्चर को रिविजिट करना। आई होप व्हेन यू विजिट इट ऑन I'll upload it. I hope you guys know where it is. और उधर आप देखोगे तो आपको क्लैरिटी होगी, नहीं होगी तो फिर डिस्कस कर लेंगे, क्या दिक्कत है। Yes, sir. ठीक है, आज कहानी यहीं रोकते हैं।